this was the first principle कि any planet which is the lord of ascendant is always a functional benefic planet. और इसीलिए आपने देखा भी होगा कि whenever we go to an astrologer and we ask for what gem we should wear, so he straight away recommends the lord of the ascendant planet stone actually, because that can never be a malefic planet. And our purpose is also to strengthen the lagna as far as possible, because that is our capability, our potential. जितना वो बढ़ेगा उतना ही हमारे लिए हर चीज में फायदा भी करेगा. दूसरा कहा कि अगर कोई भी प्लैनेट जब त्रिक हाउस का लॉर्ड होता है, कोई भी प्लैनेट जब त्रिक हाउस का लॉर्ड होता है, मतलब लॉर्ड मींस कि 6, 8, 12 हाउसेस का, तो दैट प्लैनेट इज ऑलवेज ए फंक्शनल मेलिफिक प्लैनेट इन योर बर्थ चार्ट. इसके बाद अगर प्लैनेट इज नॉट द लॉर्ड ऑफ ascendant एंड नाइदर द लॉर्ड ऑफ त्रिक हाउस, और अगर हॉरोस्कोप में कहीं पर उसका प्लेसमेंट है, तो अगर वो प्लैनेट फ्रेंडली है विद द लॉर्ड ऑफ ascendant, if the planet is friendly with the lord of ascendant, then that planet will be considered as a functional benefic planet, otherwise not. और लास्ट में जब हम कोई भी planet if it is the lord of trikon houses, lord of trine houses is 5 and 9 apart from the first house we already seen it can never be a functional malefic planet. So we are talking of the trine houses, that is 5th and the 9th houses. तो कोई भी प्लैनेट जब ट्राइन हाउस का लॉर्ड होता है, तो ऐसा प्लैनेट भी हमेशा फंक्शनल बेनिफिक होता है, प्रोवाइडेड कि its मूल त्रिकोण साइन does not fall in a त्रिक हाउस, provided its मूल त्रिकोण साइन does not fall in a त्रिक हाउस. लेट अस से कि एक असेंडेंट है हमारा 1 नंबर, एरीज इज द असेंडेंट. उसमें जो जुपिटर है is a lord of 9th house as well as 12th house. Jupiter is a lord of trine house as well as a त्रिक house. एरीज ascendant के लिए या 1 नंबर ascendant के लिए जुपिटर जो है हमारा 9th house का भी लॉर्ड है और त्रिक हाउस का भी लॉर्ड है. 9th हाउस जैसे हमने कहा ट्राइन हाउस है और 12th हाउस हमारा त्रिक स्थान है. तो हमें ये देखना है कि जुपिटर का मूल त्रिकोण साइन जो त्रिक हाउस में तो फॉल नहीं करता, अगर त्रिक हाउस में फॉल करेगा तो ये मेलिफिक हो जाएगा आपके लिए, और अगर त्रिक हाउस में फॉल नहीं करता है तो ये प्लैनेट हमेशा आपके लिए बेनिफिक होगा. तो यहाँ पर जुपिटर का जो मूल त्रिकोण साइन है दैट इज सैजिटेरियस 9 नंबर. सो इस मूल त्रिकोण साइन इज नॉट इन द त्रिक हाउस. तो इसीलिए फॉर एरीज असेंडेंट Jupiter will always be a functional benefic planet. And just in contrast to this, let us say that ascendant is the Virgo ascendant, 6 number ascendant. Usme Saturn is the lord of 5th house and the 6th house. Saturn is the lord of, I can show you with the, I think, horoscope only, that will be better. यहाँ ascendant you see is a Virgo ascendant, 6 number sign, and Saturn is the lord of this house and this house. यहाँ भी जो Saturn is the lord of trine house as well as त्रिक house. ये trine house है आपका, ये त्रिक house है. यहाँ पर जो Saturn का मूल त्रिकोण साइन है that is 11 number, that is Aquarius sign, and Aquarius sign is in the त्रिक house. Aquarius sign is in the त्रिक house. So though the Saturn is the lord of trine house also, but since its मूल त्रिकोण sign falls in a त्रिक house, so that's why Saturn will become a functional malefic planet in this case. तो इस तरह से आपको डिसाइड करना है कि depending on the houses the planet rules actually, so that will decide about the functional benefic and malefic planets. जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें and for the different ascendant, मान लीजिए कि ascendant is sign number 1, एरीज ascendant है, तो यहाँ पर उसके लिए जो planet functional benefic हैं they are moon, Mars, sun and Jupiter, और जो malefic planet है वो मरकरी है
और जो न्यूट्रल प्लैनेट है वो वीनस और सैटर्न है। तो एक एक प्लैनेट को अगर हम कंसिडर करें डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी हैव सेड जस्ट नाउ, डिपेंडिंग ऑन दोज प्रिंसिपल्स. So let us first talk about moon. For Aries ascendant, moon is the lord of which house? It's the lord of 4th house. For Aries ascendant, moon is the lord of 4th house. And moon is friendly to the Mars. Moon is friendly to the lord of ascendant. तो जैसा हमने कहा कि अगर कोई प्लैनेट ट्राइन हाउस में या त्रिक हाउस का लॉर्ड ना हो और किसी भी दूसरे हाउस में अगर बैठा हुआ है, तो अगर वो ascendant lord के साथ फ्रेंडली है उसका रिलेशन, तो दैट प्लैनेट बिकम्स फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट. तो यहाँ पर मून जो है वो 4th हाउस का लॉर्ड होगा 1 नंबर ascendant के लिए. तो और ascendant का लॉर्ड जो मार्स है एरीज साइन का, उसका फ्रेंड है, तो इसलिए मून बिकम्स द फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट. देन सन जो है 1 नंबर ascendant के लिए, it will be the lord of 5th house. 5th house is a trine house and it rules only over one sign. So there is no involvement of trik house in this case, and that's why the lord of any trine house is always functional benefic planet. So हम कहेंगे कि sun is also functional benefic planet for Aries ascendant. Then let's talk about Mars. Mars is the lord of the ascendant. Aries ascendant का जो lord है वो मंगल ही है, and lord of ascendant can never be a functional malefic planet. It is always a functional benefic planet. इसलिए हमने मार्स को भी यहाँ पर functional benefic planet दिखाया. Then if we talk of Mercury, 1 नंबर ascendant के लिए Mercury will be the lord of 3rd and the 6th houses. Mercury will be the lord of 3rd and the 6th house. And since Mercury is the lord of a trik house, Mercury is the lord of trik house, it will become a functional malefic planet. Then if we consider Jupiter, just now we discussed that for Aries ascendant, Jupiter is the lord of 9th and 12th houses. और इसका जो मूल त्रिकोण साइन है जुपिटर का, that is Sagittarius sign, 9th sign. Therefore, मूल त्रिकोण sign does not fall in the trik house. Therefore, Jupiter is also a functional benefic planet for Aries ascendant. Venus की बात करें तो Venus is the lord of which houses? 2nd and 8th house. Venus will be the lord of 2nd and the 8th house. Aries ascendant. Venus जो है 2 नंबर और 7 नंबर का, 2nd and the 7th house, 2nd and the 7th house. और ये Venus and Mars का न्यूट्रल है, आपस में रिलेशनशिप जो है, तो ये एक फंक्शनल न्यूट्रल प्लैनेट हो गया यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस के लिए. और शनि को अगर हम कंसिडर करें तो शनि इज द लॉर्ड ऑफ 10th and 11th houses. 10th and 11th houses. और शनि के लिए जो मंगल है वो न्यूट्रल है. मंगल के लिए शनि जो है वो न्यूट्रल प्लैनेट है, तो इसलिए ये भी जो है फंक्शनल न्यूट्रल प्लैनेट यहाँ पर हो गया. तो इस तरह से हम फॉर डिफरेंट असेंडेंट वी कैन डिसाइड कि विच इज फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट, विच इज फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट. So we have listed out here, but this is all on this basis only. But apart from this, many times it happens कि suppose the planet is functional benefic, but it is badly afflicted with the malefic planets. So it can't act as a benefic planet in that case. तो वो भी चीजें हमें देखनी है कि इन सब चीजों के बावजूद भी अगर कोई भी बेनिफिक प्लैनेट बुरी तरह से अफ्लिक्टेड है तो वो एक बेनिफिक प्लैनेट नहीं हो सकता. ऐसे ही अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट हैज एन एसोसिएशन विद ऑल बेनिफिक प्लैनेट तो वो एक मेलेफिक नहीं रहेगा, देन इट मे बिकम ए बेनिफिक प्लैनेट आल्सो. सो द पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स विल आल्सो डिपेंड कि प्लैनेट बेनिफिक है या मेलेफिक है. और कभी कभी ऐसा होता है कि इन कंडीशन के हिसाब से प्लैनेट फंक्शनल बेनिफिक आ रहा है, लेकिन वो सन के बहुत पास है, कंबस्ट है, अस्त है. तो अगर जब भी प्लैनेट कंबस्ट हो जाता है तो हमने देखा था कि वो प्लैनेट जो है बिल्कुल बेकार हो जाता है. उसको हम कोप अवस्था कहते हैं. कोप अवस्था में प्लैनेट की जो
स्ट्रेंथ है या प्लैनेट की जो पावर है वो ही खत्म नहीं होती, इट स्टार्ट्स बिहेविंग इन ए नेगेटिव वे, तो हमारे लिए उल्टा हो जाता है। तो फंक्शनल बेनिफिक होने के बावजूद भी अगर वो कंबस्ट है तो इट विल नॉट एक्ट एज ए बेनिफिक प्लैनेट, देन इट मे बिकम ए मैलेफिक प्लैनेट। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, और अगर ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे तो यू कैन फाइंड आउट कि कौन सा प्लैनेट आपके हॉरोस्कोप में फंक्शनल बेनिफिक है और कौन सा प्लैनेट फंक्शनल मैलेफिक है। और उसी पीरियड में इनके रिजल्ट होते हैं जब इनकी दशा ऑपरेट होती है। किसी भी प्लैनेट के जो आपको रिजल्ट मिलते हैं जब उस प्लैनेट की पर्टिकुलर दशा ऑपरेट होती है। और थोड़ा सा हम आज दशा के बारे में भी बात कर लेते हैं कि 3 चीजें होती हैं जब हम किसी भी इवेंट को प्रिडिक्ट करते हैं। 3 चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। पहला होता है कि जो हाउस है उसमें प्लैनेट की क्या पोजीशन है। सेकंड इज द दशा विच इज ऑपरेटिंग, एंड थर्ड इज द ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट जिसको हम गोचर कहते हैं। व्हाट इज द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ दोज प्लैनेट्स, if they are superimposed in your horoscope, what will be the present position, and all have been given the equal importance, equal weightage। अगर 1/3 अगर प्लैनेट का रोल है तो 1/3 दशा का भी रोल है, और 1/3 रोल जो है वो ट्रांजिट का भी है, गोचर का भी है। तो हमें कभी भी किसी भी इवेंट को प्रिडिक्ट करने के लिए तीनों चीजों की जरूरत पड़ती है। अपने प्लैनेट की पोजीशन, सेकंड दशा किस प्लैनेट की चल रही है, और थर्ड होता है कि आज की डेट में उन प्लैनेट का ट्रांजिट में क्या पोजीशन है। तो प्लैनेट का पोजीशन हम लोगों ने देखा यहाँ पर, और नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दशा। और आप देखिए वैसे भी कि प्लैनेट की पोजीशन तो वही रहती है, प्लैनेट की पोजीशन कभी चेंज नहीं होती, फिर भी जो व्यक्ति की लाइफ है उसमें बहुत मेजर चेंजेस आते हैं। कभी कोई आदमी प्राइम मिनिस्टर है, अगले दिन जेल में है, कभी एक बहुत खराब पोजीशन में है, कभी बहुत अच्छी पोजीशन में भी है। तो ये डिपेंड करता है कि दशा किस प्लैनेट की ऑपरेट हो रही है और उस प्लैनेट की पोजीशन आपके हॉरोस्कोप में क्या है, और रिजल्ट जो है उसके ऊपर डिपेंड करेंगे कि उस प्लैनेट की जिसकी दशा ऑपरेट हो रही है उसकी आपके हॉरोस्कोप में क्या पोजीशन है। दशाएं बहुत तरह की होती हैं, और मेनली हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 3 तरह की दशाएं कंसिडर करते हैं। एक को हम कहते हैं विंशोत्तरी दशा, अष्टोत्तरी दशा और योगिनी दशा। विंशोत्तरी मीन्स 120 ईयर्स, अष्टोत्तरी मीन्स 108 ईयर्स। तो विंशोत्तरी दशा में जो एक हमारा साइकिल है दैट इज ऑफ 120 ईयर्स। अष्टोत्तरी दशा में जो साइकिल है 108 ईयर्स है, और जो योगिनी दशा होती है उसमें जो साइकिल होता है वो 36 ईयर्स का होता है, और 36 ईयर्स के बाद वो साइकिल रिपीट होता रहता है। नॉर्मली जो इन दशाओं का इस्तेमाल होता है, विंशोत्तरी दशा बेसिकली वी यूज इन द नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में आप जो भी आपके पास हॉरोस्कोप लेकर आएगा यू विल फाइंड दैट विंशोत्तरी दशा उसके अंदर निकाली हुई होंगी। साउथ इंडिया में ज्यादातर लोग अष्टोत्तरी दशा को यूज करते हैं, तो साउथ इंडिया से जो भी लेकर आता है वो अष्टोत्तरी दशा उसके हॉरोस्कोप में निकाली हुई होती है। और योगिनी दशा का जो बेसिक इस्तेमाल है एज पर आवर एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट, they say that it is used in the hilly areas and also in the erstwhile Punjab. But आज की डेट में जो रिजल्ट माने गए हैं कि आज के टाइम में जो रिजल्ट आपको मिलते हैं सबसे अच्छे वो विंशोत्तरी दशा के मिलते हैं, और विंशोत्तरी दशा का ही हम इस्तेमाल भी करते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो आज हम थोड़ा सा विंशोत्तरी दशा के बारे में स्टडी करेंगे। विंशोत्तरी दशा इज बेस्ड ऑन द नक्षत्रास, कि जन्म के समय जो भी आपका बर्थ नक्षत्र है, जन्म के समय जो भी आपका बर्थ नक्षत्र है उसका जो लॉर्ड है उसकी दशा ऑपरेट होती है। जो भी आपके नक्षत्र है बर्थ के टाइम, उसका जो भी लॉर्ड होगा जन्म के टाइम उसकी दशा ऑपरेट होती है। और उसके बाद जो दशाएं ऑपरेट होती हैं उनका सीक्वेंस वही है जो कि नक्षत्र के लॉर्ड्स का सीक्वेंस है। नक्षत्र के लॉर्ड्स हमने देखे थे, उनका जो सीक्वेंस है वो केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी।
ये सीक्वेंस होता है और वही सीक्वेंस जो है इन दशाओं का भी है। और जैसे टोटल मैंने कहा कि विंशोत्तरी दशा का साइकिल जो है 120 ईयर्स का होता है और इसमें जो है डिफरेंट ईयर्स हैव बीन असाइन टू द ईच प्लैनेट कि एक पर्टिकुलर प्लैनेट की दशा जो है विंशोत्तरी दशा में इतने साल की होती है। तो केतु हैज बीन असाइंड 7 ईयर्स, Venus 20 years, Sun 6 years, Moon 10 years, Mars 7 years, Rahu 18 years, Jupiter 16 years, Saturn 19 years, and Mercury 17 years. So if you add all these years, it will come to 120 years. 120 साल की जो है दशा होगी। अब आप लोगों ने अपना कंप्यूटर हॉरोस्कोप देखा होगा, तो उसमें जब विंशोत्तरी दशा निकाली होती है तो सबसे पहले तो होती है महादशा और उसमें लिखा हुआ होता है कि बैलेंस ऑफ विंशोत्तरी महादशा एट द टाइम ऑफ बर्थ। वो इसलिए लिखा जाता है कि जब हम बर्थ हमारा होता है तो वी आर नॉट एट द बिगिनिंग ऑफ द नक्षत्र। अगर हम बिगिनिंग में होते नक्षत्र के 0 डिग्री पर तो जो भी उस नक्षत्र का लॉर्ड होता उसका हमें पूरा पीरियड हमें जो है वो होता हमारी लाइफ में। लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि वी आर एट द बिगिनिंग, वी आर ऑलवेज इन द मिडिल समवेयर। तो हमें प्रोपोर्शनेट बेसिस पर ये निकालना पड़ता है कि उस नक्षत्र का कितना पोर्शन बाकी बचा हुआ है और उसके प्रोपोर्शनेट बेसिस पर उस प्लैनेट उस नक्षत्र के लॉर्ड की दशा होती है। जैसे मान लीजिए कि एक नक्षत्र जो है वो 13 डिग्री एंड 20 मिनट्स का होता है एक नक्षत्र। किसी का बर्थ हुआ कि भरणी नक्षत्र है और उसमें 3 डिग्री 20 मिनट पर नक्षत्र हुआ, 3 डिग्री एंड 20 मिनट्स पर जो नक्षत्र है मून का वो है। तो भरणी नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो वीनस है। इसका मतलब बर्थ के टाइम आपकी जो दशा ऑपरेट हो रही है वो वीनस की दशा ऑपरेट हो रही है और वीनस में से 3 डिग्री 20 मिनट्स हैव गॉन, 3 डिग्री 20 मिनट्स हैव गॉन, इट मींस द बैलेंस इज ओनली 10 डिग्री। तो अगर 3 डिग्री 20 मिनट्स नहीं जाते तो बैलेंस दशा शुड हैव बीन वीनस 20 इयर्स, बट नाउ 3 डिग्री 20 मिनट्स आउट ऑफ 30 डिग्री 20 मिनट्स हैव गॉन, हैव already passed actually. The balance is only 10 degree. So on the proportionate basis for 10 degree, for 13 degree 20 minute dasha will be 20 years and for 10 degree how much will be the period balance. तो हम देखेंगे तो 1/3 has gone and 1/4 has gone and 3/4 is the balance period. और वीनस की दशा 20 years की होती है तो इसमें से हम कहेंगे 5 साल वीनस के निकल गए हैं और 15 साल उसके बाकी हैं। तो हम कहेंगे कि बर्थ के टाइम के बाद पहले 15 साल वीनस की दशा ऑपरेट होगी और फिर उसके बाद जो बाकी दशाएं पूरी होंगी एंड इन द सेम सीक्वेंस एज द लॉर्ड ऑफ नक्षत्र। वीनस के बाद सन, फिर मून, फिर मार्स, फिर राहु, फिर जुपिटर, उस टाइप की दशाएं पूरे टाइम की ऑपरेट होंगी। ओनली थिंग इज कि वी हैव टू फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ विंशोत्तरी दशा एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड दैट वी कैलकुलेट ऑन द प्रोपोर्शनेट बेसिस, बट it's already calculated in your horoscope, is always written over there. अब आपने देखा होगा कि जो दशाएं हैं उसमें 3 चीजें होती हैं, एक महादशा, एक अंतरदशा और एक प्रत्यंतर दशा। द मेन पीरियड, सब पीरियड एंड द सब पीरियड। जब भी आप अपना कंप्यूटर हॉरोस्कोप खोलेंगे तो यू फाइंड द मेंशन ऑफ 3 दशास। वन इज द मेन पीरियड, another is the sub period and another is the sub period. तो जैसे एक सैटर्न का मान लीजिए मेन पीरियड है और अभी हमने कहा कि सैटर्न की जो दशा होती है वो 19 इयर्स की होती है। तो हम क्या करते हैं कि इस दशा को 19 इयर्स को we divide into 9 parts. We divide into 9 sub dashas of each planet. तो proportionate basis पर we'll see how we calculate. तो इसमें जो पहला सब पीरियड होगा वो उसी प्लैनेट का होगा। सैटर्न में जो पहली जो अंतरदशा होगी वो सैटर्न की होगी और उसके बाद वही सीक्वेंस, सेम सीक्वेंस, सैटर्न के बाद मरकरी, केतु, वीनस, सन, मून, मार्स। तो हमने क्या किया कि जो मेन दशाओं को जो डिवाइड कर लिया 9 सब पीरियड्स में, 9 अंतरदशाओं में। तो ये छोटे या मतलब हमने डिफरेंट पार्ट्स कर लिए और आपने देखा होगा कि जब सैटर्न की या किसी भी प्लैनेट की जिसका कि लंबा टाइम होता है
उसकी दशा जब ऑपरेट होती है तो रिजल्ट एक से नहीं होते, कि ऐसा नहीं है कि शनि की दशा चल रही है तो पूरे 19 साल आपको शनि के रिजल्ट ही मिलेंगे. दैट रिजल्ट्स कीप ऑन चेंजिंग, सो दैट वी विल डिस्कस. तो ये हुआ सब पीरियड. अब जो सब पीरियड हमने निकाला, लेट अस से सैटर्न या सैटर्न मरकरी या सैटर्न केतु या सैटर्न वीनस, इस सब पीरियड को भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू 9 सब पीरियड, जिसको हम प्रत्यंतर दशाएं हम बोलते हैं. जैसे मान लीजिए कि सैटर्न मरकरी का एक सब पीरियड है, शनि की महादशा में मरकरी की अंतर्दशा चल रही है, तो इसको हम 9 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. एंड अगेन द प्रिंसिपल विल रिमेन द सेम, कि जो पहली प्रत्यंतर दशा होगी वो जो सब पीरियड वाला प्लैनेट है उसी की होगी. तो इस तरह से फिर हम इसको मरकरी केतु वीनस इस तरह से 9 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. तो एट ए टाइम आप देख रहे हैं कि जहां तक दशाओं का सवाल है, एक महादशा है, एक अंतरदशा है और एक प्रत्यंतर दशा है. तो क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट इज द रोल ऑफ दिस थ्री, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस थ्री. बट उससे पहले भी हम थोड़ा सा ये कैलकुलेट देख लेते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट भी करते हैं. कि महादशा तो मैंने कह दिया कि सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि जो जन्म के टाइम नक्षत्र कितना पास हो गया है और कितना बैलेंस है, बिकॉज वी आर कंसर्न विद द बैलेंस दशा, और जितना नक्षत्र का डिग्री बैलेंस है उसके प्रोपोर्शनेटली हम निकाल लेते हैं कि उस दशा का कितना बैलेंस पीरियड बाकी है. बाकी दशाएं पूरी चलती हैं. और अगर सब पीरियड हमें निकालना है किसी भी महादशा में, किसी भी प्लैनेट का अगर सब पीरियड निकालना है, तो उसका बहुत एक सिंपल तरीका है which everyone should know, because many times we need to calculate on the fingers actually. जैसे कि शनि की महादशा है और मरकरी का जो है वो अंतरदशा में निकालनी है कि कितना पीरियड होगा. शनि की महादशा में मरकरी का जो सब पीरियड होगा या अंतरदशा होगी वो कितने टाइम की होगी, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो डिफरेंट ईयर्स असाइंड किए हैं इन दोनों प्लैनेट्स को, शनि को दशा 19 साल की होती है, 19 ईयर्स की. मरकरी पीरियड इज ऑफ 17 ईयर्स. हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं. वी मल्टीप्लाई जस्ट द पीरियड असाइंड टू दिस टू प्लैनेट्स. तो 19 into 17 किया तो वी गेट दिस फिगर 323. नाउ इट इज वेरी सिंपल कि जो फिगर आया उसका लास्ट डिजिट दिस 3 multiplied by 3 will give you the number of days. 3 into 3, that is 9 days. And whatever balance digits are remaining, whatever may be the balance digits, that will give you the total number of months, 32 months. 32 months and 9 days, and months goes when we convert it to years, so it comes to 2 years, 8 months and 9 days. Simple है very कि इन दोनों किसी की भी अगर हमें सब पीरियड निकालना है, आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करिए. मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी फिगर आती है उसका लास्ट डिजिट लेकर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. दैट विल गिव यू नंबर ऑफ डेज, एंड व्हाटएवर इज द लेफ्ट डिजिट्स, दैट इज द नंबर ऑफ मंथ्स. लाइक दिस वी कैन फाइंड आउट द सब पीरियड अंडर एनी मेन पीरियड. लेट अस से कि हमें ये मालूम करना है कि सन में मार्स का सब पीरियड कितना होगा. सन में मार्स का सब पीरियड कितना होगा? तो सिंपल है, सन को 6 साल होते हैं, मार्स को 7 साल होते हैं. इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, इट कम्स टू 42. और लास्ट डिजिट 2 है, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, 6 डेज. एंड बैलेंस फिगर जो भी बची दैट इज नंबर ऑफ मंथ्स, तो इट कम्स टू 4 months and 6 days. So it's very simple. You can always calculate on fingers also, and many times it is required also. अगर आपके पास कंप्यूटर हॉरोस्कोप नहीं है तो many times you will need it also. So you should know how to calculate the sub period of any planet in the main period. और जहां तक सब पीरियड निकालने का सवाल है, सब पीरियड बहुत छोटे होते हैं और हम क्या करते हैं कि तीनों पीरियड्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मेन पीरियड को, सब पीरियड को और सब पीरियड को, और इसको 120 into 120 से डिवाइड करते हैं, तो दैट गिव्स सब पीरियड इन द ईयर्स. और अगर हम इसको 360 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वी गेट द सब पीरियड इन द डेज. तो ये मेन पीरियड इंटू सब पीरियड इंटू सब पीरियड डिवाइडेड बाय 40. So we can get सब पीरियड in number of days.
in respect of any planet. Now, what we are mainly concerned is why should we have 3 dashas at a time? One is the main period, one is the sub period, and one is the sub period. Why we need these 3 dashas? और जैसे मैंने कहा कि एक महादशा में results will not be same for the entire period of mahadasha. Results will keep on changing. So naturally, there is a role of these planets also, this subplanet and sub-planets also, as far as results are concerned. तो उसमें कहा कि जो भी at a time result आपको मिलते हैं, वो या तो महादशा लॉर्ड के होंगे या अंतरदशा लॉर्ड के होंगे. जो हमने कहा कि मेन दशा, सब दशा एंड सब दशा. तो रिजल्ट जो होंगे एट ए टाइम वो या तो मेन पीरियड लॉर्ड के होंगे या सब पीरियड लॉर्ड के होंगे. बट सब पीरियड लॉर्ड हैज नो रोल एज फार एज द रिजल्ट्स आर कंसर्न. तो रिजल्ट आपको एट ए टाइम या तो मेन पीरियड लॉर्ड के मिलते हैं या सब पीरियड लॉर्ड के मिलते हैं. अब किसके मिलेंगे दोनों में से, दैट यू टू डिसाइड एक्चुअली, एंड दैट इज द मेन पर्पस. हम जो अपने जो कंप्यूटर हॉरोस्कोप में what we do, we calculate the strength of each planet as well as the strength of each house. वो हम देखेंगे अभी कैसे हम calculate करते हैं. And we examine the position of each planet from different angles, whatever may be possible, and then we try to find out the total strength of the planet. क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, एस्ट्रोलॉजी का पर्पस यही है कि व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लैनेट, व्हाट रिजल्ट्स अ प्लैनेट कैन गिव, व्हाट आर द एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ ईच प्लैनेट. अनलेस वी नो दैट एक्यूरेटली, वी कांट बी एक्यूरेट इन आवर प्रेडिक्शंस. तो सबसे जरूरी है कि हमें हर प्लैनेट का जो बल है, हम उसको षट बल बोलते हैं या स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट बोलते हैं, वो हमें बहुत अच्छी तरह मालूम होना चाहिए. और उसमें बहुत सारी स्ट्रेंथ होती हैं जो हम कैलकुलेट करेंगे. और आपके कंप्यूटर हॉरोस्कोप में अगर आप देखेंगे भी तो 1 फुल पेज इज डिवोटेड टू ग्रह एंड द भावबल और द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट एज वेल एज द स्ट्रेंथ ऑफ हाउसेस. तो वो प्लैनेट का इंपॉर्टेंट है कि अनलेस एंड अंटिल वी नो द स्ट्रेंथ ऑफ ईच प्लैनेट, वी कांट बी एक्यूरेट इन द प्रेडिक्शंस. और वो भी डिफरेंट एंगल से निकालकर आपके कंप्यूटर हॉरोस्कोप में हर प्लैनेट की स्ट्रेंथ जो है वो लिखी हुई होती है. और जहाँ तक हाउस की स्ट्रेंथ का सवाल है कि व्हाई डू वी कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउसेस व्हेन वी हैव द स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट्स. देखिए, हर हाउस के कुछ ना कुछ सिग्निफिकेशंस होते हैं. हर हाउस के कुछ ना कुछ सिग्निफिकेशंस होते हैं, कुछ ना कुछ लाइफ के एस्पेक्ट हम उस हाउस से एग्जामिन करते हैं. एंड स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, इट टेल्स अस कि जो हाउस की सिग्निफिकेशंस हैं वो आपको किस मात्रा में मिलेंगे, कम मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे. और जब तक वो हाउस स्ट्रांग नहीं होगा तब तक हमें उस हाउस के सिग्निफिकेशंस ठीक तरह से नहीं मिलेंगे. मान लीजिए कि 7th हाउस स्ट्रांग नहीं है, वीक है, तो वी कैन नॉट हैव मैरिटल हैप्पीनेस इन द लाइफ. 10th हाउस अगर वीक है स्ट्रेंथ में, तो वी कैन नॉट हैव द प्रोफेशनल स्टेबिलिटी इन आवर लाइफ. 4th हाउस अगर वीक है तो वी कैन नॉट हैव अ डोमेस्टिक हैप्पीनेस इन आवर लाइफ एक्चुअली. तो ये हर हाउस की स्ट्रेंथ या हम कहते हैं भाव बल, उसका रोल होता है कि जो उस हाउस के सिग्निफिकेशंस होते हैं उसकी बताता है कि हमें वो कितने सिग्निफिकेशंस उस हाउस के मिलेंगे अथवा नहीं मिलेंगे या किस क्वांटिटी में मिलेंगे. तो ये हम ग्रह और भाव बल कैलकुलेट करते हैं. और एक जैसा मैंने कहा कि 1 full page is devoted in your computer horoscope about this strength of the houses and the planets. तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो एट ए टाइम जो रिजल्ट हमको मिलते हैं वो या तो मेन पीरियड लॉर्ड के मिलते हैं या सब पीरियड लॉर्ड के मिलते हैं. तो ये कैसे हम डिसाइड करेंगे कि मेन पीरियड लॉर्ड के मिलेंगे या सब पीरियड लॉर्ड के मिलेंगे. उसका सिंपल प्रिंसिपल है कि व्हेन वी नो द स्ट्रेंथ ऑफ ईच प्लैनेट, हमने जो ग्रह बल निकाला या स्ट्रेंथ निकाली हर प्लैनेट की, उससे हमें पता लग गया कि कौन सा प्लैनेट आपके हॉरोस्कोप में ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सा प्लैनेट कम स्ट्रांग है, या हर प्लैनेट की स्ट्रेंथ क्या क्या है आपके हॉरोस्कोप में. तो इन दोनों में से जो भी स्ट्रॉन्गर होगा
मेन पीरियड लॉर्ड और सब पीरियड लॉर्ड में whichever is the stronger planet, you will get the result of that planet at that particular time or at that sub period. तो हमें ये देखना है कि जो मेन पीरियड लॉर्ड है और सब पीरियड लॉर्ड है, इन दोनों में से जो स्ट्रॉन्गर प्लैनेट कौन सा है और उस प्लैनेट के रिजल्ट हमें एट ए टाइम मिलेंगे। और जैसे मैंने कहा कि सब पीरियड हैज नो रोल as far as results are concerned, then why do we use that sub period also? That also we have to understand. अभी जैसे आपने देखा कि मैंने कैलकुलेट किया था कि सैटर्न एंड मरकरी का सब पीरियड, सैटर्न एंड मरकरी का सब पीरियड कैलकुलेट किया था, and that came 32 months and 9 days, 2 years 8 months and 9 days. Suppose somebody comes to me and you want to know that I've already applied for the service or I want to join some service, when can I get that service? What are the chances for that? मैंने देखा कि ये सैटर्न मरकरी का पीरियड चल रहा है, इट्स वेरी फेवरेबल पीरियड फॉर प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो कहेंगे नहीं तो बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, आपकी नौकरी लग जाएगी। बट nobody will be satisfied with that. You want to know कि किस डेट में लगेगी, किस महीने में लगेगी या किस वीक में लगेगी। तो आपने कहा सैटर्न मरकरी का पीरियड तो 3 साल का है करीब करीब, तो अगले 3 साल में लग जाएगी तुम्हारी नौकरी, जाओ आराम करो। Then he will never come back to you. That is not what is expected from an astrologer. They want to know the exact time when this event is likely to happen, and that is the beauty of this knowledge. तो हमें ये बताना है कि 3 साल में नहीं, हमें बताना है कि किस महीने में किस डेट में नौकरी लगेगी। उसके लिए हम जो है वो सब पीरियड या प्रत्यंतर दशा लॉर्ड का इस्तेमाल करते हैं, एंड वी से दैट प्रत्यंतर दशा लॉर्ड और द सब पीरियड लॉर्ड, it helps in implementation of the results indicated by the main and the sub period lord. कि जब सब प्लैनेट कोई फेवरेबल आएगा तो जो रिजल्ट इंडिकेटेड है पहले 2 प्लैनेट से, तो वो रिजल्ट इंप्लीमेंट उस टाइम में हो जाएंगे। और आप देखेंगे कि सब पीरियड इज वेरी शॉर्ट पीरियड, 15 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का, 2 महीने का, इस टाइप का होता है। तो नाउ यू कैन पिन पॉइंट कि ठीक है, आज कोई मेरे पास आता है तो डिपेंडिंग ऑन द सब पीरियड आई कैन से कि ठीक है आपको दिसंबर जनवरी में नौकरी लग जानी चाहिए, दिसंबर में नौकरी लग जानी चाहिए। तो इससे हमने पिन पॉइंट कर दिया कि एक लिमिट कर दिया कि इस पर्टिकुलर महीने में ये काम होने वाला है। और जब आप गोचर को पढ़ेंगे, ट्रांजिट को पढ़ेंगे, तो जब हम तीनों को कंबाइन करेंगे तो then you find that we can pinpoint even the date also, date of the event also. तो इन तीनों की मदद से हम इवेंट का डेट भी बता सकते हैं। और जब हम तीनों का इस्तेमाल करेंगे, प्लैनेट का, दशा का और गोचर का, तो ये 3 चीजें आपको देखनी है कि जहां तक दशा का सवाल है, 3 दशाएं होती हैं, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। ये आपके सबके कंप्यूटर हॉरोस्कोप में कैलकुलेटेड होंगी और जो रिजल्ट आपके होंगे या तो महादशा लॉर्ड के होंगे या अंतरदशा लॉर्ड के होंगे। और जो प्रत्यंतर दशा लॉर्ड है या सब पीरियड लॉर्ड है, दैट हेल्प्स इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिजल्ट्स। आप मान लीजिए कोर्ट में गए, कोर्ट ने जजमेंट तो पास कर दिया आपके फेवर में, बट पेपर को लेके घूमने से कोई फायदा नहीं होगा अनलेस दैट जजमेंट इज इम्प्लीमेंटेड। जब तक डिक्री वगैरह नहीं होगी या जजमेंट इम्प्लीमेंट नहीं होगा, जब तक कोई फायदा नहीं है। वही चीज यहाँ पर सब लॉर्ड का रोल है कि वो हेल्प करता है जो रिजल्ट आपके इंडिकेटेड है वो कब इम्प्लीमेंट होंगे। दैट इज द बेसिक पर्पज ऑफ दिस दशा लॉर्ड। अब कुछ प्रिंसिपल्स हैं दशा लॉर्ड के कि जैसे हमने कहा कि उस प्लैनेट की पर्टिकुलर पोजीशन आपके हॉरोस्कोप में क्या है, उस प्लैनेट की पर्टिकुलर आपके हॉरोस्कोप में क्या पोजीशन है। तो नॉर्मली ये कहा जाता है कि अगर नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है, दैट वी ऑलरेडी सीन कि नेचुरल बेनिफिक कौन से होते हैं, नेचुरल बेनिफिक क्या होते हैं, तो उनके नॉर्मली फेवरेबल रिजल्ट होते हैं अनलेस एंड अनटिल दोस प्लैनेट्स आर टू एफ्लिक्टेड। ऐसे ही जो नेचुरल मैलिफिक प्लैनेट होते हैं उनके भी रिजल्ट फेवरेबल नहीं होते हैं नॉर्मल केस में जो है।
और सबसे इंपॉर्टेंट है अबाउट द लॉर्ड ऑफ ट्राइन हाउसेस, लॉर्ड ऑफ 5th and 9th हाउसेस। उसके बारे में कहा कि भले ही ये प्लैनेट मेलिफिक हो या बेनिफिक हो, अगर ट्राइन हाउस का लॉर्ड है उसके रिजल्ट हमेशा फेवरेबल मिलेंगे। और जो त्रिस्डाई हाउसेस होता है, त्रिस्डाई हाउसेस हमने देखे थे 3, 6, 11 हाउसेस हैं, उसके जो लॉर्ड होते हैं वो भले ही बेनिफिक हो या मेलिफिक हो, उसके रिजल्ट्स कभी भी फेवरेबल नहीं मिलते। इसके अलावा जो 8th हाउस है, हमने कहा कि 8th हाउस इज द वर्स्ट हाउस बिकॉज दिस इज 12th फ्रॉम द 9th हाउस, so this is supposed to be the worst house। तो 8th हाउस के लॉर्ड की जब दशा ऑपरेट होती है तो उसके रिजल्ट कभी भी फेवरेबल नहीं होते, बट ओनली अंडर वन कंडीशन, इफ दैट प्लैनेट इज आल्सो द लॉर्ड ऑफ लग्ना। लॉर्ड ऑफ लग्ना है तो अच्छे रिजल्ट होंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। और जो लग्न का लॉर्ड होता है उसकी जब दशा ऑपरेट होती है तो हमेशा जो है वो फेवरेबल रिजल्ट ही मिलते हैं। इसके बाद कुछ चीजें और भी हैं कि हमें ये भी देखना पड़ता है कि जो मेन पीरियड और सब पीरियड लॉर्ड का आपस में क्या रिलेशन है। मेन पीरियड और सब पीरियड लॉर्ड का आपस में क्या रिलेशन है। अगर ये रिलेशन 2-12 का है कि मान लीजिए मरकरी और सैटर्न एक हाउस में, मरकरी एक हाउस में है, सैटर्न दूसरे हाउस में है, तो इन दोनों प्लैनेट का जो रिलेशन है पोजीशन वाइज, दैट बिकम्स द रिलेशन ऑफ 2-12। तो जब 2-12 के प्लैनेट की दशा ऑपरेट होती है तो नॉर्मली रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं मिलते हैं एंड इट गिव्स लॉट ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आल्सो। ऐसे ही जब दो प्लैनेट जिनकी दशा, महादशा और अंतर्दशा ऑपरेट होती है, अगर उनकी पोजीशन 6-8 होती है आपस में आपके हॉरोस्कोप के अंदर, तो उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे नहीं मिलते हैं, इन स्पाइट ऑफ दे बीइंग द लॉर्ड ऑफ ट्राइन एंड ऑल दोस थिंग्स, बट उसके रिजल्ट आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। एंड 6-8 इज सपोज्ड टू बी द वर्स्ट फ्रॉम द हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू एंड द लॉसेस आल्सो। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि जो भी हम दशा के रिजल्ट हमको किस टाइप से मिलने वाले हैं। Excuse me, uncle, I have a question. जी। So 8th हाउस के बारे में क्वेश्चन है कि किसी की लग्न चार्ट में 8th हाउस में सैटर्न बैठे हैं जी, and the lagna lord is the number 7, so but in the moon chart Saturn moves to the 9th house। हाँ, तो इसमें हम क्या कंसिडर करेंगे, क्योंकि अब Saturn has now moved in the moon chart to 9th house, is it still bad? For the time being you consider only the lagna chart. I will tell you कि when we use the moon chart, but for all practical purpose we should depend only on the lagna chart only. So in this case a Saturn mahadasha will be a bad dasha then, right? नहीं, Saturn आपने कहा कि it is placed in the 8th house. Correct. Right, but in which sign? It's a lord of which house? Lord, so it's number 2. नहीं, ascendant is sign number 2. No, ascendant is 7. Ascendant is 7, then Saturn is the yoga karak planet. It's a lord of Kendra and the trine also. जब 4th और 5th हाउस का लॉर्ड हो गया कोई भी प्लैनेट, या केंद्र और त्रिकोण का लॉर्ड हो गया, तो इट बिकम्स ए योग कारक प्लैनेट। इट ऑटोमेटिकली बिकम्स ए राजयोग कारक प्लैनेट। इट गिव्स यू वंडरफुल रिजल्ट्स। राजयोग जो भी योग कारक प्लैनेट है उसके रिजल्ट कभी भी खराब नहीं होते हैं। Understood. Despite being the 8th house. So it all depends कि किस हाउस के लॉर्ड हैं। जो हमने बात की फंक्शनल, मैलिफिक, बेनिफिक की, लेकिन जो योग कारक प्लैनेट होता है, योग कारक प्लैनेट मतलब कि विच इज अ लॉर्ड ऑफ ट्राइन एज वेल एज द क्वाड्रेंट, तो वो योग कारक प्लैनेट हो जाता है। उसको हम कहते हैं कि योग कारक प्लैनेट बिकम्स अ राजयोग कारक। इट्स नेवर मैलिफिक, इट्स ऑलवेज बेनिफिक प्लैनेट। सर मुझे पूछना है, मान लीजिए सजिटेरियस लगन है जी, तो वीनस क्या है उसके लिए? देखिए किस किस हाउस का लॉर्ड है। वो 6th हाउस का है और 11th हाउस का है। 6th हाउस और 11th हाउस का, तो 3 हाउस का लॉर्ड हो गया। सिंपल सी बात है जी। तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि कोई भी प्लैनेट जब 3 हाउस का लॉर्ड होता है तो इट इज ऑलवेज फंक्शनल मैलिफिक प्लैनेट। जी, वो हमने डिस्कस किया था अभी। जी जी जी। तो वो यहाँ पर फंक्शनल मैलिफिक प्लैनेट हो गया। मैलिफिक, या जैसे आपने कहा कौन सा साइन बताया आपने? सजिटेरियस लगन। सैजिटेरियस लगन। आप देख रहे हैं सैजिटेरियस लगन के लिए वीनस इज अ मैलिफिक प्लैनेट।
जी जी जी। क्योंकि इट्स लॉर्ड ऑफ 6th हाउस व्हिच इज तो त्रिक सर हाउस। जैसे ये 11th का भी लॉर्ड है, वो इसका मूल त्रिकोण साइन है, तो उसका नहीं मतलब नहीं, देखिए दो चीजें कहा था हमने कि जी एक तो लग्न का लॉर्ड कभी खराब नहीं होगा, जी फंक्शनल मैलिफिक नहीं होगा। जी जी दूसरी जो बात की थी कि ट्राइन के लॉर्ड, ट्राइन हाउस के लॉर्ड, जी 5th एंड 9th हाउस के लॉर्ड, जी वो भी मैलिफिक नहीं होते प्रोवाइडेड उनका मूल त्रिकोण साइन त्रिक हाउस में ना हो। जी और बाकी जो हाउस है वो तो फंक्शनल मैलिफिक बेनिफिक होंगे डिपेंडिंग ऑन कि किस हाउस के लॉर्ड हैं। 11th हाउस तो और खराब है, थ्रिसडाई हाउस है, उसका ओके लॉर्ड मैलिफिक बेनिफिक कैसे हो सकता है? जी तो ये हमें 6th हाउस का लॉर्ड है, त्रिक हाउस का लॉर्ड है, इसलिए वो फंक्शनल। जी। जैसे ये स्कॉर्पियो लगन है, जी तो इसमें भी वीनस मैलिफिक है, मैलिफिक है, देखिए यहाँ पर मैलिफिक लिखा हुआ बिकॉज लॉर्ड ऑफ 12th हाउस। 12th और 7th भी है सर। हाँ तो बट त्रिक हाउस का लॉर्ड हो गया, 7th का वो नहीं है कि हमेशा बेनिफिक होगा, वो सिर्फ ट्राइन के लिए एप्लीकेबल है, ना कि और किसी चीज के लिए। ओके ओके। एनी अदर क्वेश्चन? तो सैटर्न स्कॉर्पियो लगन में सैटर्न भी अच्छा, न्यूट्रल न्यूट्रल का है। क्या क्राइटेरिया है सर? हाँ जी, न्यूट्रल का क्या क्राइटेरिया है? न्यूट्रल सैटर्न मींस कि न्यूट्रल है। नाइदर इट इज फंक्शनल मैलिफिक नॉर बेनिफिक, ओके रिजल्ट बिल्कुल नॉर्मल मिलेंगे, खराब ना अच्छे। ओके। Yeah. I wanted to show you one more thing actually before we proceed further. सर एक चीज पूछनी थी, ये हाँ सेजिटेरियस लगन में जी, अच्छा फिर सैटर्न न्यूट्रल है, तो मतलब उसका क्राइटेरिया कुछ नहीं है, क्योंकि वो सेकंड और थर्ड हाउस का लॉर्ड है, तो राइट। कोई मतलब ना। और जुपिटर के साथ न्यूट्रल है सैटर्न जो है, ओके तो ओके। इसलिए न्यूट्रल हो गया वो। जी जी जी। This is the position of planets tomorrow at about 11:30, or you can say between 11 okay 11:35 ठीक है ओके। यहाँ आप क्या देख रहे हैं? What you are able to see from this horoscope actually? ये लग्न है कल का, कल करीब 11:30 बजे का टाइम अगर हम लें तो दिस इज द लग्ना चार्ट एट दैट टाइम। So what do you find from this chart? Can anybody tell me? लगन लग्नेश तो छठे घर में बैठा है, और मून जो है, मून कल जाएगा कर्क में। कल मून की पोजीशन है कल ये। जाएगा कर्क में, ये आज तो नहीं है, 0 डिग्री का है। और जी कल का जो दिन है वो कहते हैं कि करीब 300-400 साल के बाद आता है ऐसा टाइम। और इसकी ब्यूटी ये है कि ऑल प्लैनेट एक्सेप्ट वीनस, अपने they घर are में, all placed in their own sign। अपने घर में। सर ये ये 2-3 दिन से हैं वैसे। नहीं मून अभी कल आ रहा है ना, तो इसलिए हाँ कल। मून कल आ रहा है, बाकी सब तो या 2-3 दिन से हैं। हाँ बाकी तो है, लेकिन मून भी कल आ रहा है। जी तो जी यहाँ देखिए आप, जुपिटर अपने साइन में है, जी सैटर्न अपने साइन में है, जी मार्स अपने साइन में है, मून अपने साइन में है 9th हाउस वंडरफुल पोजीशन, सन अपने साइन में है 10th हाउस इज वंडरफुल पोजीशन, मरकरी उच्च का है अपने साइन, उच्च का है प्लैनेट। जी। तो 6 प्लैनेट, 7 में से घर 6 प्लैनेट अपने साइन में प्लेस्ड हैं। और ये पोजीशन जैसे मैंने कहा कि 200-300 साल के बाद आती है। और
पिछले करीब 300-400 साल पहले आई होगी और अभी भी नेक्स्ट 200-300 साल तक नहीं आनी है. So it's a very auspicious position of planet, particularly tomorrow after 11:45 to 1. That is the best time. कि कोई काम करना हो आपको, कोई इवन अगर पूजा पाठ भी करना है किसी अच्छी चीज के लिए, तो that is the best time, because ऐसी पोजीशन कभी आती नहीं है कि सारे के सारे प्लैनेट अपने साइन में प्लेस्ड हों. It's a very rarest of the rare phenomenon actually, and it's repeated only after 300-400 years. तो कल का टाइम particularly from 11:45 to 1, that is the best time because लग्न यही रहेगा और मून 9th हाउस में ही होगा, सन 10th हाउस में ही होगा, मरकरी 11th हाउस में ही होगा. This is one of the best position of planets tomorrow. और अगर आउटसाइड ऑफ इंडिया देखें अंकल तो वी जस्ट एडजस्ट द टाइम जोन. क्या जी? अगर सिंगापुर का कैलकुलेट करना है तो वी जस्ट ऐड नहीं, planet will remain in the same position. Planets are universal because we are talking of the position of the planet in the zodiac. So that is universal. Only thing is the lagna will change, that's all. तो लग्न अगर तो पर अगर 11:45 इंडिया टाइम पे पूजा करनी चाहिए. हाँ, इंडिया टाइम है, बट अगर लग्न आप देखिए अपने सिंगापुर टाइम से, आप कंप्यूटर हॉरोस्कोप में डाल के आप देख सकते हो कि 8 नंबर लग्न कब आएगा. दैट यू कैन सी आल्सो, यहाँ भी देख सकते हो. ओके. लेट्स तो सर जिनका 8 नंबर लगन है उनके लिए भी टाइम का है? नहीं, दिस इज बेसिकली जो हम कह रहे हैं कि मुहूर्त जैसा होता है कि अच्छा टाइम है, उस टाइम के लिए बहुत अच्छा जो ये पोजीशन है इस समय जो है. सिंगापुर क्यों नहीं आ रहा? ये रहा था कुर्सी के नीचे से नीचे है जहाँ. हाँ ये रहा. ये नहीं, जहाँ आपका कर्सर था. ये सॉरी ये हाँ सिटी आल्सो तो एकादशी है. करेक्ट सर. पार्डन? कल एकादशी भी है. हाँ, बट ये जो प्लैनेट की पोजीशन है इट्स रियली गुड एक्चुअली. इट्स वंडरफुल पोजीशन एक्चुअली. ये देखिए 8 नंबर लगन यहाँ भी, वहीं पर सिंगापुर में भी है 11:30 बजे के करीब, और लग्न का डिग्री 6 डिग्री है. तो इसका मतलब 11:30 से 1 बजे तक का जो टाइम है वो सिंगापुर में इज नहीं, सॉरी, इज शोइंग 8 नंबर लग्न, बट मून इज चेंजिंग आफ्टर दैट. लेट अस सी. Something wrong actually. Why it is showing that? अगर हम ऐड कर लेंगे ना 2.5 hours इंडिया टाइम के हाँ, तो उसके हिसाब से कर लीजिए. You can do that also. Correct. That'll be okay. Thank you. Yeah. So tomorrow is the time when we have 6 planets in their own signs. कोई योग भी है जब सब प्लैनेट्स अपने साइन में होते हैं? हाँ जी. कोई योग बनता है, ऐसे कोई योग बताया जाता है? इससे बढ़िया योग तो कोई हो ही नहीं सकता ना कि जब सारे प्लैनेट अपने साइन में हो. That in itself is a very good yoga actually. अच्छा, एक दो चीजें मैं और बताना चाह रहा था आपको कि I don't know whether I've told you or not. पंचक के बारे में बताया आपको या राहु काल के बारे में बताया आपको कभी पहले? नहीं सर, नहीं बताया. नहीं बताया ना. तो लेट्स टॉक अबाउट पंचक फर्स्ट एक्चुअली. कि जब भी कोई फैमिली में डेथ होती है तो हम एस्ट्रोलॉजर के पास भागते हैं कि जल्दी से पूछ के आओ कि पंचक तो नहीं चल रहे हैं. यही पूछने जाते हैं हम इमीडिएटली जब कोई फैमिली में डेथ होती है. और क्वेश्चन ये है कि पंचक पहले क्या होते हैं एंड व्हाई वी आर सो कंसर्न्ड अबाउट पंचक, कि पंचक अगर है तो क्या प्रॉब्लम होने वाली है. पहली चीज तो ये है कि जो मून का मूवमेंट है इन द 2 साइंस, वन इज द एक्वेरियस एंड वन इज द पाइसेस साइन. तो ये 2 साइन में जब मून मूव करता है उस पीरियड को हम पंचक कहते हैं. पंचक मीन्स ए ग्रुप ऑफ 5 and group of 5 relates to the 5 nakshatras.
एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, और जब हम मून के ट्रांजिट की बात कर रहे हैं इन द 2 साइंस, इट मींस इट विल कवर 4.5 नक्षत्रास। इट विल कवर 4.5 नक्षत्रास। तो यहाँ पर जो हम पंचक की बात करते हैं, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स 5 नक्षत्र, दो इट इज एग्जैक्टली 4.5। लास्ट के जो 4.5 नक्षत्र हैं, जैसे हम शुरू करें मूला, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रावण, धनिष्ठा, शतविशाख से। शतविशाख का सेकंड पार्ट पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, शतविशाख, धनिष्ठा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद एंड रेवती। तो ये 4.5 नक्षत्र हैं। इन 4.5 नक्षत्रों को जब मून इनमें गोचर करता है तो हम कहते हैं कि पंचक चल रहे हैं। और 4.5 नक्षत्र की बात हो रही है, और मून जो है हर महीने 4.5 जब इन नक्षत्रों में आएगा तो वो पीरियड पंचक का पीरियड होगा। इसका मतलब यह है कि हर महीने जो 4.5 दिन का पीरियड होगा उसको हम पंचक का पीरियड कहेंगे, जब मून जो है या एक्वेरियस एंड पाइसेस साइन में ट्रांजिट कर रहा है, या जो लास्ट के जो 4.5 नक्षत्र हैं उसमें ट्रांजिट कर रहा है। और जो हर महीने ये पीरियड आना है 4.5 दिन का जो है, और आप अपने जो पंचांग अगर आपके पास होगा या फिर मैरिज आपके पास होंगी, तो उसमें आप देखेंगे हर महीने लिखा होता है कि पंचक आरंभ इस टाइम से और पंचक समाप्त इस टाइम में, एंड दैट इज अ पीरियड ऑफ 4.5 डे एवरी लूनर मंथ। अब जो लोग हम रिलेट करते हैं कि एक अगर कुछ डेथ होती है उस पर्टिकुलर टाइम में, तो मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर ऑफ द ओपिनियन ऑन दैट इज आवर माइंडसेट कि एक अगर फैमिली में डेथ हुई है तो 5 डेथ और होंगी, बट that is not correct, because panchak doesn't mean 5 death or 5 of anything of the life. It only says 5 means ki 5 nakshatra. It relates to the 5 nakshatras, nothing to do with 5 numbers. तो पहली चीज तो ये है कि जब पंचक का समय चलता होता है तो हम अपने आप कोई शुभ काम नहीं करते। पंचक का जब पीरियड चलता है तो उस टाइम हम कोई भी अपने आप शुभ काम नहीं करते, या शुभ काम करने के लिए वो पीरियड ऑस्पिशियस नहीं होता है। लेकिन अगर अपने आप शुभ या अशुभ काम हो जाता है, अपने आप अगर शुभ या अशुभ काम हो जाता है, तो देन देयर आर चांसेस ऑफ गेटिंग इट रिपीटेड इन द नियर फ्यूचर। वो बाद में जो नियर फ्यूचर में उसकी रिपीट होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। तो इसीलिए हम डरते हैं कि अगर फैमिली में एक डेथ हुई है और अगर पंचक के टाइम हुई है तो वो चीज दोबारा से रिपीट होगी। और डेथ ही नहीं, अगर अच्छा काम भी होता है, कोई अगर आपको फायदा हुआ है, कोई अगर ऑस्पिशियस काम हुआ है, तो उसके भी रिपीट होने के चांसेस होंगे नियर फ्यूचर में। तो दो चीजें हैं कि हम अपने आप कोई भी शुभ काम नहीं करेंगे पंचक के टाइम में, लेकिन कोई भी अगर अच्छा बुरा काम अपने आप हो जाता है तो वो नियर फ्यूचर में रिपीट होता है। और आप जो रिसेंट एग्जाम्पल्स हैं उससे भी देख सकते हैं कि जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था इंडिया के अंदर, तो आप देखिए उस दिन पंचक चल रहे थे। तो जिस समय लॉकडाउन शुरू हुआ पंचक चल रहे थे, तो था कि ये रिपीट होगा। ये जो कह रहे थे कि 15 दिन में हम लॉकडाउन खत्म कर देंगे, नॉट पॉसिबल। अभी सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई, उस डेट में आप अपने पंचांग से देखिए, उस दिन पंचक चल रहा था, एंड नेक्स्ट डे वी गॉट द न्यूज कि हिज भाभी हैज आल्सो डाइड। तो ये इस टाइप की चीजें होती हैं कि अगर कोई भी चीज अगर अपने आप होती है तो उसके निकट भविष्य में रिपीट होने के चांसेस होते हैं। और ये जो एक सिंबॉलिक है कि अगर डेथ होती है तो वो 5 पुतले और जला देते हैं उसके साथ में, आई डोंट थिंक दैट हैज एनी सिग्निफिकेंस, बिकॉज 5 का तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर होगा तो कभी कभी हम देखते भी हैं कि एक फैमिली में एक डेथ होती है तो कुछ ही दिनों में दूसरी डेथ भी हो जाती है, अगर वो पर्टिकुलर डेथ पंचक के टाइम में हुई हो। तो ये पंचक का रेलेवेंस है, क्योंकि आपसे लोग। लेकिन सर इसमें मतलब ज्योतिष के हिसाब से क्या इसका वो है, मतलब ओनली मान्यता है ये कि ज्योतिष के हिसाब से भी है? मान्यता नहीं है। देखिए बहुत सारी चीजें ज्योतिष में दे आर बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ ऋषि एंड मुनि। हम कहते हैं कि ये प्लैनेट इस साइन में है तो ऐसे रिजल्ट होंगे। हम क्यों कहते हैं? बिकॉज मोस्ट ऑफ दिस थिंग्स आर बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस ओनली। इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, बट दे आर बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस कि ऐसा होता है।
बट पंचक को काफी माना जाता है और इसका आप देखेंगे इसका इफेक्ट भी होता है। आप एक्सपीरियंस करके देखिए अपने आप ही कि अगर इस पीरियड में कोई भी अगर अच्छा बुरा काम होगा तो वो रिपीट होगा नियर फ्यूचर में जो है। ऐसे ही एक चीज और है जो हम राहु काल जिसको हम बोलते हैं, और राहु काल के लिए साउथ इंडियंस पर्टिकुलरली दे आर वेरी कंसर्न अबाउट राहु काल। नॉर्थ इंडिया में तो शायद हम लोग इतना नहीं मानते हैं, बट इन साउथ इंडिया दे आर वेरी पर्टिकुलर। और जब राहु काल ऑपरेट होता है तो दे डोंट डू एनीथिंग, दे डोंट इवन साइन ए पेपर इन देयर ऑफिस आल्सो। तो दे आर सपोज्ड टू बी सच एन इनऑस्पिशियस टाइम एक्चुअली। राहु काल के बारे में भी थोड़ा सा जस्ट वी विल डिस्कस कि राहु काल क्या होता है एक्चुअली में। कि अगर हम सनराइज से सनसेट के टाइम को, दिस इज ऑलवेज बिटवीन द टाइम ऑफ सनराइज एंड द सनसेट। सनराइज से सनसेट के टाइम को अगर हम 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, सनराइज से सनसेट के टाइम को अगर हम 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसमें से जो एक पार्ट होता है जैसे इट इज रूल्ड बाय राहु एंड विच इज नॉट ए ऑस्पिशियस पीरियड एक्चुअली। तो हम कैसे डिसाइड करते हैं? अब जनरली जो बिलीफ है हमारा, हमने मान लिया कि सनराइज सुबह 6 बजे है और सनसेट शाम को 6 बजे है, तो ये पीरियड 12 घंटे का हुआ सनराइज से सनसेट का। और 12 घंटे को अगर हम इफ यू डिवाइड बाय 8 तो वी गेट 1.5 आवर, 1.5 घंटे का हमें टाइम मिलता है। तो नॉर्मली जो लेमैन है जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है इसकी, तो उसके लिए टाइम फिक्स है कि एक पर्टिकुलर हर वीक डे में एक 1.5 घंटे का टाइम होगा जो कि बहुत अशुभ होता है, उसमें कोई वो काम नहीं करते हैं। बट अगर हम सिंपल जो याद करने के लिए उसको करें, क्योंकि हर दिन आप देख रहे हैं कि अलग अलग टाइम होता है, कोई एक टाइम नहीं होता, एवरी डे यू हैव ए डिफरेंट टाइम एक्चुअली। तो एक अगर सेंटेंस अगर हम याद कर लें, मदर सॉ फादर wearing the turban slowly, mother saw father wearing the turban slowly। जैसे हम यहाँ मदर करें इसको, मदर मतलब मंडे, सॉ मीन्स सैटरडे, फादर मीन्स फ्राइडे, मदर सॉ फादर, wearing means Wednesday, sorry, wearing, the means this Thursday, wearing the, turban means Tuesday, and slowly means Sunday. So if you remember this sentence, कि mother saw father wearing the turban slowly, then you can find out कि कौन सा दिन का कौन सा portion will be ruled by Rahu। सबसे पहले मदर है, मंडे है। तो मंडे में देखिए जब हम डिवाइड करते हैं सनराइज से सनसेट के टाइम को 8 इक्वल पार्ट्स में, तो फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज नॉट रूल्ड बाय एनी प्लैनेट। जो अगर हम 6 बजे सनराइज को माने और 6 बजे सनसेट को माने, तो फर्स्ट पार्ट होगा 6 to 7:30। तो दैट इज नॉट रूल्ड, तो वी जस्ट लीव दैट पार्ट एक्चुअली। और जो बाकी जो 7 हिस्से बचते हैं वो किसी ना किसी हर दिन में अलग अलग टाइम पर राहु के द्वारा रूल किए जाते हैं। तो मदर कहा कि फर्स्ट पार्ट है, तो इफ इट टेक सनराइज एट 6 एंड सनसेट एट 6, तो 7:30 to 9 वाला जो टाइम होगा वो मंडे को राहु काल होगा। 7:30 से 9 के बीच का जो टाइम होगा दैट विल बी द राहु कालम ऑन मंडे। And you might have seen that South Indians, they are very comfortable on Monday, because by the time they go to the office, they go to the work, Rahu Kal is already over. So they need not to worry about anything about the Rahu Kal throughout the day. So Monday is the best day for them, because फिर राहु काल की चिंता नहीं होती उन लोगों को जो है। By the time you go to the work, it's already over. Then जो 7:30 से 9 का मंडे का हो गया, फिर सेकंड इज द सैटरडे, मदर सॉ। और सैटरडे को आप कहेंगे कि जो राहु काल होता है 9 से 10:30 बजे के बीच होता है, 9 से 10:30 बजे के बीच में होता है। फिर फादर मीन्स फ्राइडे,
फिर फ्राइडे को जो राहु काल होगा 10:30 से 12 बजे के बीच में होगा। फ्राइडे को जो राहु काल होगा 10:30 से 12 के बीच में होगा। वियरिंग वेडनेसडे को होगा 12 से 1:30 बजे तक। तो इस तरह से आप देखेंगे यू कैन रीच अप टू 6 o'clock in the evening, leaving the first 1/8 part from sunrise. तो इस फॉर्मूले से आप, इस सेंटेंस से आपको ये पता लग जाता है कि किस पर्टिकुलर डे में राहु काल जो है वो किस टाइम से किस टाइम तक होगा। बट जो 1.5 घंटे का समय है, एंड विच मोस्ट ऑफ द पीपल दे फॉलो आल्सो, दिस इज नॉट करेक्ट, बिकॉज सनराइज 6 बजे नहीं होगा, सनसेट भी 6 बजे नहीं होगा। वी हैव टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट टाइम ऑफ सनराइज फ्रॉम योर पंचांग, एग्जैक्ट टाइम ऑफ सनसेट फ्रॉम योर पंचांग, और जो भी टाइम आएगा उसको आपको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, एंड बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू कैलकुलेट द राहु काल। तो इसलिए राहु काल का टाइम जरूरी नहीं है कि 1.5 घंटे का ही हो पहले, क्योंकि सनराइज और सनसेट कभी कभी बहुत अंतर हो जाता है, पर्टिकुलरली विंटर सीजन में, जबकि सनराइज 7 बजे होता है, सनसेट 5 बजे हो जाता है, तो दिन इज ऑफ 10 आवर्स, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। और एग्जैक्टली अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उस दिन का सनराइज टाइम और सनसेट टाइम निकालिए, फिर आपको पता लगेगा कि कितने टाइम का राहु काल है और कब से कब तक वो ऑपरेट होगा। और कभी कभी बहुत वेरिएशन होता है, 45 मिनट का भी हो जाता है, उससे भी ज़्यादा हो जाता है कभी कभी वेरिएशन। बट जो लोग पंचांग, कुछ पंचांग ऐसे भी आते हैं कि उसमें हर दिन का राहु काल कैलकुलेट किया होता है। तो ये 2 टर्म थी अबाउट दिस पंचांग, सॉरी पंचक एंड द राहु काल। उसके बाद नाउ वी कम टू द टॉपिक जो एग्जैक्टली हमें पढ़ना है। देयर आर वेरियस योगास इन एस्ट्रोलॉजी, बहुत सारे योग हैं, और जब कोई भी योग होता है आपके हॉरोस्कोप में, अपार्ट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स, और योग होता है कि या तो कुछ पर्टिकुलर प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन हो, या तो कुछ पर्टिकुलर प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन हो, या कोई पर्टिकुलर प्लैनेट एक पर्टिकुलर हाउस में प्लेस्ड होता है, तब योग बनते हैं। और जब भी योग बनते हैं तो दे सुपरसीड द पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स, फिर वो उनका जो प्राइमरी रोल उनका हो जाता है, एंड समटाइम दे एंटायरली चेंज द कंप्लेक्शन ऑफ द हॉरोस्कोप आल्सो। तो ये अगर बहुत ही अच्छा कोई पावरफुल योग बन रहा है तो उसके रिजल्ट आपको मिलने लगते हैं, फिर जो बाकी पोजीशन की प्लैनेट की पोजीशन है वो उतना मैटर नहीं करती है। तो ये डिफरेंट योग हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट योग माने गए वो सन और मून से बनते हैं, कि ये दो इम्पोर्टेंट प्लैनेट हैं, सन और मून। आप देखिए कि सन और मून क्या है। जब हम लोगों ने डिस्कस किया था प्लैनेटरी कैबिनेट में, सन इज द किंग एंड द मून इज द क्वीन, दे बिलोंग टू द रॉयल फैमिली, सन एंड द मून। और रॉयल फैमिली के जो लोग हैं, राजा या रानी, उनका नेचर देखिए आप कभी आप, कि जब तक उनके साथ कोई एडवाइजर्स नहीं होते या और लोग नहीं होते, तब तक वो बिल्कुल इनएक्टिव रहते हैं। वो कभी देखिए वो कुछ नहीं करेंगे, बट एज सुन एज देयर इज अ कंपनी ऑफ एडवाइजर्स, दे स्टार्ट एक्टिंग। वही रोल यहाँ पर भी है इन प्लैनेट का, कि जब तक सन और मून के साथ और प्लैनेट नहीं होते हैं, दे रिमेन टोटली इनएक्टिव, वो एक्ट ही नहीं करेंगे। आपको लगेगा सन हमारे हॉरोस्कोप में बहुत अच्छा है, बहुत उच्च का प्लेस्ड है, मून बहुत उच्च का प्लेस्ड है, लेकिन उसके आसपास कोई प्लैनेट नहीं है, तो दे आर टोटली यूजलेस प्लैनेट्स। इतना अच्छा होने के बावजूद भी उनके रिजल्ट आपको 0 मिलने लगते हैं, जस्ट बिकॉज कि देयर इज नो एसोसिएशन ऑफ एनी प्लैनेट विद देम। यहाँ पर जो हम एसोसिएशन की बात करते हैं, तो पहले तो हस्बैंड एंड वाइफ है, किंग क्वीन है, तो आपस में एसोसिएशन से कुछ नहीं होता, आपस में एसोसिएशन से दे विल नॉट एक्ट। सेकेंडली, राहु एंड केतु जो नोट्स हैं उनसे भी एक्टिवेट नहीं होंगे, क्योंकि वो और उसको खराब करते हैं। तो देयर हैज टू बी सम अदर प्लैनेट अपार्ट फ्रॉम सन, मून एंड राहु एंड केतु। मतलब सन के साथ मून का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, राहु केतु का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, ऐसे ही मून के साथ सन का या राहु केतु का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। तो उससे हम बहुत सारे योग बनते हैं, और योग का पर्पस सिर्फ यही है
कि इन प्लैनेट का को एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये इंपॉर्टेंट प्लैनेट है आपको सारा कुछ देते हैं, और जब तक ये एक्टिवेट नहीं होंगे तो आपके लिए बेकार है आपके हॉरोस्कोप में जो है। बहुत बार ऐसा है कि इनसे बहुत खराब योग बनते हैं क्योंकि इनके आसपास कोई प्लैनेट नहीं होता है। तो सन से जो योग बनते हैं उसको हम पहला वेसी योग कहते हैं। वेसी योग का मतलब होता है कि कोई भी प्लैनेट, जैसे मैंने कहा कि मून और राहु केतु की हम बात नहीं करेंगे, उनको छोड़कर एनी अदर प्लैनेट ऑक्युपाइज सेकंड पोजीशन फ्रॉम द सन। अगर सन से सेकंड पोजीशन में इन प्लैनेट के अलावा कोई और प्लैनेट है तो हम कहते हैं कि बहुत अच्छा योग बन गया, क्योंकि जो सन आपके हॉरोस्कोप में है उसने एक्ट करना शुरू कर दिया, ये वो एक्टिवेट हो गया। सन के रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, अदरवाइज सन के रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। ऐसे ही जब कोई प्लैनेट सन से 12th पोजीशन में प्लेस्ड होता है अपार्ट फ्रॉम मून, राहु एंड केतु, तभी भी योग बनता है, उसको हम कहते हैं वसी योग। वसी योग भी वही है कि you start getting the result of the planet sun, which is very important planet actually। और अगर बाई चांस दोनों तरफ ही प्लैनेट हो सन मून के, इट्स वंडरफुल योग। देन So whether that planets are benefic or malefic, कोई भी हो, देखिए irrespective of that, बेनिफिक होंगे उसके हिसाब से बिहेव करेगा वो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट व्हाट वी आर कंसीडरिंग वेदर द सन विल गेट एक्टिवेटेड और नॉट। अगर उसके एडवाइजर खराब होंगे तो गलत सोचेगा वो, एडवाइजर अच्छे होंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। वो तो बेसिक प्रिंसिपल है एस्ट्रोलॉजी में कि अगर मैलेफिक प्लैनेट का साथ होगा तो खराब होगा, बेनिफिक का साथ होगा तो अच्छा होगा। तो अगर दोनों तरफ प्लैनेट हो जाते हैं तो बहुत अच्छा योग बन जाता है, जिसको हम उभयचरी योग बोलते हैं। बट सन के साथ ये है, जैसे हम लोगों ने कहा था कि सन और मरकरी का जो डिस्टेंस है, इट कैन नॉट बी मोर देन 29 डिग्री एट ए टाइम। इसका अर्थ यह है कि सन और मरकरी के बीच में एक घर का ही डिफरेंस हो सकता है, इससे ज्यादा का डिफरेंस नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सन के साथ तो मरकरी हमेशा होगा ही, सेकंड में हो या 12th में हो। बट मरकरी इज अ चाइल्ड, तो मरकरी से बहुत ज्यादा एक्टिवेट नहीं होता, बट इवन देन एटलीस्ट मरकरी इज देयर, तो सम सेविंग ग्रेस इज देयर। लेकिन मून के साथ जो योग बनते हैं वहां पर अगर मून से सेकंड हाउस में सन और नोट्स के अलावा कोई दूसरा प्लैनेट होता है तो सुनफा योग बनता है। 12th में होता है तो अनफा योग बनता है, और अगर दोनों तरफ होता है तो दुर्दुरा योग बनता है। इट मीन्स इट्स अ वंडरफुल योग, मून इज फुली एक्टिवेटेड इन दैट केस। बट ये जरूरी नहीं है कि मून के साथ मरकरी होगा ही, क्योंकि उसका कोई डिस्टेंस का कोई उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सन के साथ तो रेस्ट्रिक्शन है, तो सन से तो सेकंड में होगा या 7 में होगा या 12th हाउस में मरकरी को होना ही होना है। तो मरकरी सन कुछ हद तक एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन अगर मून के साथ कोई प्लैनेट नहीं है इधर उधर, एंड इट हैपेंस इन मैनी केसेस, एंड यू सी दैट मून हमारा एक्सॉल्टेड था, अपने साइन का था, इतना अच्छा प्लेस्ड है, और रिजल्ट तो कुछ मिल नहीं रहे उसके, क्योंकि उसके दोनों तरफ कोई प्लैनेट नहीं है। और ये एक वन ऑफ द मोस्ट नेगेटिव योग बनता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, उसको हम केमद्रुम योग बोलते हैं। अगर मून के इधर उधर सन के अलावा और राहु केतु के अलावा अगर कोई प्लैनेट ना हो, एंड यू फाइंड इट इन मैनी केसेस, तो इट्स वेरी पावरफुल नेगेटिव योग। और आप देखते हैं कि बिल्कुल जो मून के रिजल्ट, मून इज योर माइंड एक्चुअली, आपका माइंड ही काम नहीं करता, फिर बिल्कुल बेकार हो जाता है वो प्लैनेट एकदम से जो है। और इसीलिए कहा कि अगर कोई प्लैनेट नहीं होते तो इस इज वेरी सॉरोफुल स्टेट, द पर्सन इज वेरी पुअर, डिपेंडेंट, बिकॉज इस माइंड इज नॉट वर्किंग एक्चुअली इन दैट केस। कितना भी अच्छा मून क्यों ना हो आपके हॉरोस्कोप में, लेकिन दोनों तरफ अगर कोई प्लैनेट नहीं है तो ये टोटली इनएक्टिवेटेड रहता है, वो एक्ट ही नहीं करता, उसके रिजल्ट आपको मिलना शुरू ही नहीं होते। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव योग बन जाता है, जिसको हम केमद्रुम योग बोलते हैं। बट कुछ कंडीशंस में ये योग फिर भी काम करने लगता है, मून फिर भी एक्टिवेट हो जाता है, बशर्ते कि मून बहुत स्ट्रांग हो आपके हॉरोस्कोप में। अगर आप बहुत ही मेंटली अगर बहुत स्ट्रांग हैं
तो यू मे नॉट नीड द एडवाइजर्स, यू कैन एक्ट योरसेल्फ। तो वही है, अगर मून अगर बहुत ज्यादा, जैसे यहाँ लिखा हो कि मून अगर एक्सॉल्टेड है या अपने साइन में है, तब ये योग नलिफाइड हो जाता है। या मून और वीनस क्वाड्रेंट में होते हैं एंड बोथ आर एस्पेक्टेड बाय जुपिटर, इन दैट केस आल्सो इट गेट्स नलिफाइड। या फिर मून इज इन द नवान साइन ऑफ द इंटीमेट फ्रेंड एंड एन एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर। तो इन 3 केसेस में ये अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो ये योग जो है वो नलिफाई हो जाता है। बट दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट काइंड ऑफ योग कि मून अच्छा होते हुए भी या मून वेल प्लेस्ड होते हुए भी आपको मून के रिजल्ट आपको नहीं मिलते, क्योंकि दोनों तरफ उसके कोई प्लैनेट नहीं होते हैं। इसके अलावा एक योग और बनता है जिसको हम बुध आदित्य योग बोलते हैं। बुध मीन्स मरकरी, आदित्य मीन्स सन। जब मून और मरकरी का आपस में कॉम्बिनेशन होता है या कंजंक्शन होता है, तो उस टाइम जो योग बनता है तो उसको हम बुध आदित्य योग बोलते हैं। और जैसा कहा हम लोगों ने कि जो सन और मून का जो डिस्टेंस है, इट कांट बी मोर देन 29 डिग्री एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो देयरफॉर आप देखेंगे कि ये कॉम्बिनेशन तो होगा 70% लोगों में। यू विल फाइंड दिस कॉम्बिनेशन ऑफ सन एंड मरकरी इन 70% ऑफ द पीपल एक्चुअली। बट क्वेश्चन इज कि इसका योग का इफेक्ट क्या है, इस योग का इफेक्ट क्या है। सन देखिए, सन इज फादर and Mercury is the sun. So when you see this actual association of father and son, when they are together, so what they do actually? Father always tries to teach something to the son. वो चाहेगा कि बच्चा हमारा होशियार बने और कुछ ना कुछ सीखे, नई नई अपने से बेटर बने। वो जो है, he always concentrates only on that. वो प्यार व्यार की बात नहीं होती उस टाइम, वो हमेशा सिखाने की बात होती है। वही चीज यहाँ पर एप्लीकेबल है कि जब सन और मरकरी का एसोसिएशन होता है, द पर्सन इज मोर इंटेलिजेंट, पर्सन इज लाइकली टू बी मोर इंटेलिजेंट। तो इस योग से एक इंटेलिजेंस लेवल आपका बढ़ता है सन और मरकरी के कॉम्बिनेशन से, जब ये दोनों इकट्ठे होते हैं। पर मैंने कहा कि 70% लोगों के है योग, बट ऑल आर नॉट इक्वल इंटेलिजेंट। किसी भी योग के रिजल्ट ये डिपेंड करते हैं कि जो इन्वॉल्व प्लैनेट्स हैं या जो पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं, वो खुद उनकी क्या पोजीशन है, वो कितने स्ट्रांग है। जैसे सन और मरकरी की बात की, तो सन कितना स्ट्रांग है, वो क्या सिखा सकता है बच्चे को, या मरकरी कितना स्ट्रांग है, वो क्या सीख सकता है। तो उसकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि इन दोनों प्लैनेट की पोजीशन क्या है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये योग किस हाउस में बन रहा है। हाउस becomes very important in this case। और जैसे मैंने कहा कि ये इंटेलिजेंस से कनेक्टेड हाउस योग है, इंटेलिजेंस से रिलेटेड योग है, तो किस हाउस में बेस्ट होगा ये? कैन एनीबॉडी टेल? हाँ जी, फिफ्थ हाउस में। किसमें? फिफ्थ हाउस, 5वें घर में। एक जना बोलिए, आई थिंक इट्स लॉट ऑफ। फिफ्थ हाउस में, वेरी गुड, बिकॉज फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ इंटेलिजेंस। फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ इंटेलिजेंस। तो जिन व्यक्तियों के ये हॉरोस्कोप ये योग अगर फिफ्थ हाउस में बनेगा, तो दैट इज द बेस्ट पोजीशन ऑफ दिस योग एज फार एज द हाउस इज कंसर्न। लेकिन ये बाकी चीजों के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आपका सन कितना स्ट्रांग है, मरकरी कितना स्ट्रांग है, और कौन कौन से प्लैनेट का इसके साथ एसोसिएशन भी है। कई बार लोग कहते हैं कि अगर मरकरी इज वेरी नियर टू द सन, जैसे हम कहते हैं कि कॉम्बस्ट प्लैनेट होता है तो उसकी पावर पूरी खत्म हो जाती है एंड इट स्टार्ट्स बिहेविंग इन ए नेगेटिव वे। तो क्वेश्चन आता है कि अगर मरकरी सन के बहुत पास होगा तब क्या होगा, तब ये बुध आदित्य योग रहेगा या नहीं रहेगा। अगर इफ सन इज मरकरी इज वेरी नियर टू द सन एंड से it is within the 5 degree of the sun's longitude, then what is going to happen actually? सन को, मरकरी को, क्योंकि मरकरी हमेशा सन के पास रहता ही है, नॉर्मली हम इसको कम्बस्ट नहीं मानते हैं, क्योंकि कम्बस्ट मरकरी को नॉर्मली नहीं माना जाता है।
बट जब ये बहुत नजदीक हो जाता है सन के तो नेचुरली एनी प्लैनेट विल लूज इट्स पावर एक्चुअली। तो हम कहते हैं कि जब सन और मरकरी विद इन 5 डिग्री होते हैं या उनके बीच का डिस्टेंस 5 डिग्री से कम होता है, देन दिस योग का नाम चेंज हो जाता है। इन प्लेस ऑफ बुध आदित्य योग वी कॉल इट निपुण योग। निपुण योग, इन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ कि बुध आदित्य योग में द नेटिव इज एन ओवरऑल इंटेलिजेंट पर्सन, but nipun means ki you have an expertise in a particular field. You may not be an overall intelligent person, but definitely you have an expertise in a particular field actually. You may be a good mechanic, you may be a good artist, but not an overall intelligent person. तो ये जो बुध आदित्य योग होता है, अगर सन और मरकरी का डिस्टेंस 5 डिग्री से ज्यादा है तो it's a very good योग. It leads into the overall intelligence. और अगर सन और मरकरी का डिस्टेंस 5 डिग्री से कम होता है तब हम इसको बुध आदित्य योग नहीं बोलते हैं, हम इसको निपुण योग बोलते हैं। और निपुण मीन्स की निपुणता या एक्सपर्टाइज इन ए पर्टिकुलर फील्ड। तो ये बेसिकली सन और मून के योग हैं, बट देयर आर लॉट ऑफ योगास वी विल डिस्कस टुमारो आल्सो। तो आई जस्ट स्टॉप हियर ओनली एंड नाउ आई इनवाइट क्वेश्चंस फ्रॉम यू। Any question from your side actually? जैन साहब, ये काल के बारे में आपने बताया, एक राहु काल, एक टर्म ये भी यूज, हाँ, एक टर्म ये भी यूज किया जाता है कि चौगड़िया, कि कोई भी अच्छा काम करने से पहले चौगड़िया। It's not चौगड़िया, चौगड़िया is a different thing actually which we use for मुहूर्ता। मुहूर्त के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं, बट राहु काल तो एक इनऑस्पिशियस टाइम है, खराब समय है। ओके। तो इसलिए इस पर्टिकुलर टाइम में जो लोग मानते हैं, जो विश्वास करते हैं, उसमें कोई भी शुभ काम नहीं करते। और आप साउथ इंडियंस को देखिए, अगर ऑफिस में बैठे हुए, दे डोंट इवन साइन ए पेपर ऑन दैट टाइम एक्चुअली। हाँ, नहीं, बराबर है, बिल्कुल। हाँ, तो बहुत पर्टिकुलर होते हैं वो लोग। हम नॉर्थ इंडिया में शायद हम लोग इतना नहीं मानते इसको, बट इट्स वेरी प्रिविलेंट इन साउथ इंडिया एक्चुअली। जैन साहब जी, हॉरोस्कोप में जैसे D1 जो भावचलित चार्ट होता है जी, D1 की जगह D90 या D60 नंबर इस टाइप से लिखा होता है तो कौन सा भावचलित होगा उसमें? नहीं, देखिए वो डिविजनल चार्ट होते हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे अभी, मे बी टुमारो डे आफ्टर नेक्स्ट क्लास एक्चुअली। तो वो लग्न चार्ट और भावचलित चार्ट नहीं होते हैं, वो डिविजनल चार्ट होते हैं, उनका अपना अलग रोल होता है डिविजनल चार्ट का। तो उसका इनसे कोई मतलब नहीं है, लग्न चार्ट से और भावचलित की जो आप बात कर रहे हैं जी। वो अलग ही है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में। जी। ये जो दशा हमने देखी, मेन दशा जो है और अंतर दशा, तो इस टाइम पे जब मेन दशा चल रही है, महादशा और अंतर दशा, तो उस टाइम पे वही प्लैनेट्स के रिजल्ट्स आएंगे जो उस जिनकी दशा चल रही है। हाँ, जैसे महादशा और अंतरदशा लॉर्ड चल रही है, जैसे मैंने कहा कि किसी भी प्लैनेट के रिजल्ट होते हैं ना, उसकी दशा में ही मिलते हैं, बार बार हर समय नहीं मिलते रिजल्ट जो है, जब उनकी दशा ऑपरेट होती है जब भी रिजल्ट मिलते हैं। और एक अगर महादशा, हाँ, तो अगर मान लो किसी की जो दशा चल रही है, महादशा चल रही है, और तो वो उसी टाइप के रिजल्ट देगा जिसका वो कारक है और जिस हाउसेस को वो सिग्निफाई करता है। करेक्ट, जिन हाउसेस का लॉर्ड है, जहाँ बैठा है, जहाँ देख रहा है, और जिसका कारक है। राइट, वेरी करेक्ट। अगर मान लो जो वो प्लैनेट है वो फॉर एग्जांपल वीनस है, उसकी आई थिंक 19 इयर्स की नहीं 20 इयर्स की दशा है, 20 इयर्स की दशा है। तो उन 20 इयर्स में मान लो वो एज पीरियड है किसी का फॉर मैरिज, right, means the person is maybe around 30 years now, okay, और उसकी I'm just hypothetically saying, ठीक है, it's just an example है। yes, so उस यानी कि 20, और Venus is not aspecting marriage house, not the lord of marriage house and not the karak of marriage, for example this is for the girl, ठीक है, तो फिर उसकी मैरिज का मतलब टाइम 20 इयर्स तक नहीं आएगा। नहीं, यही तो हमने इतनी देर बात की कि जो रिजल्ट होते हैं ना,
वो मेन एंड सब पीरियड प्लैनेट में से जो भी प्लैनेट स्ट्रॉन्गर होगा उसके रिजल्ट आपको मिलते हैं। अगर वीनस स्ट्रांग है तो वीनस के मिलेंगे, अगर कोई सब पीरियड लॉर्ड स्ट्रांग है उससे ज्यादा तो उसके मिलेंगे रिजल्ट आप। तो सब पीरियड लॉर्ड मान लो स्ट्रांग नहीं है, सब पीरियड लॉर्ड में भी जुपिटर भी आ गया, मान लीजिए वीनस ही स्ट्रांग है सबसे ज्यादा, लेट अस से, राइट, बट यू से वीनस इज द लॉर्ड ऑफ 7th हाउस इन दिस केस। नो, आपने तो कहा अभी नहीं, मैंने कहा ना तो वो 7th हाउस का लॉर्ड है, ना ही वो ऑस्पेक्ट कर रहा है 7th हाउस को, ना ही वो मैरिज का कारक है फॉर गर्ल। बट मैरिज का कारक नहीं है, बट दिस इज अ कारक ऑफ ऑल लग्जरीज, ऑल कंफर्ट्स, ऑल सेंसुअल प्लेजर्स, कारक है ये। तो उस सेंस में देखेंगे तो नेचुरली जब मैरिज की बात होती है तो वी आर ऑल लग्जरीज, कंफर्ट, सेंसुअल प्लेजर्स, हैप्पीनेस, रोमांस, लव, सबका प्लैनेट तो है ये वीनस जो है। तो वीनस का रोल तो वैसे भी कारक हो या ना हो फिर भी मैरिज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है सबके लिए। ओके, तो अच्छा, जो भी जिसकी अंतर्दशा चल रही है वो सब प्लैनेट जो सब लॉर्ड है वो अगर इससे भी बीच बीच में जो भी आएंगे वो अगर वीनस से ज्यादा पावरफुल होंगे तो उनके रिजल्ट मिलेंगे आपको, नेचुरली उनके रिजल्ट मिलेंगे। और जो जिस प्लैनेट की प्रेंतर दशा चल रही होगी वो इन दोनों के जो भी रिजल्ट्स हैं वो बताएगा इम्प्लीमेंट कब होंगे और इफ दैट प्लैनेट इज फेवरेबल और फ्रेंड विद दीस प्लैनेट्स। वेरी गुड, या सेम थिंग, या राइट, यू आर राइट। थैंक यू सर। शोभा जी आप बताइए, एनी अदर क्वेश्चन? हाँ भावना जी बताइए। हाँ जी, अंकल अभी दिस मंथ देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रांजिट्स एंड प्लैनेटरी चेंजेस, राइट, उसके बारे में कुछ बोलेंगे आप, बताएंगे हमें? हाँ, 2-3 चीजें हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि सैटर्न एंड जुपिटर वो रेट्रोग्रेड चल रहे हैं, वक्री चल रहे हैं, और ये करीब मार्च अप्रैल से वक्री चल रहे हैं। और अभी जो दोनों प्लैनेट डायरेक्ट हो जाएंगे इस महीने, जुपिटर करीब डायरेक्ट हो रहा है आई थिंक ऑन अराउंड 17th of September and Saturn is getting direct on around 28th of September। तो दोनों प्लैनेट डायरेक्ट हो जाएंगे पहले, जो काफी इन्होंने जो उथल पुथल मचा रखी है वो काफी शांति की एक पोजीशन आएगी। बट यहाँ पर अभी जो मंगल, आई थिंक मंगल इज आल्सो गेटिंग रेट्रोग्रेड नाउ, अभी कल हो गया सर। हाँ, तो मंगल भी रेट्रोग्रेड हो गया, तो अब सिर्फ मंगल रेट्रोग्रेड हो जाएगा, बाकी ये दोनों प्लैनेट डायरेक्ट हो जाएंगे। और दूसरा ये है कि जो जुपिटर है अभी तक 9th साइन में चला गया था वापस, तो दैट विल कम बैक इन कैप्रिकॉर्न साइन अगेन इन द मंथ ऑफ नवंबर एक्चुअली। फिर जुपिटर एंड सैटर्न का एसोसिएशन हो जाएगा। तो ये जो भी आजकल आप देख रहे हैं कि काफी उथल पुथल हो रही है हर चीज में, जो है वो काफी एक स्टेबिलिटी आएगी थोड़ी सी इसके बाद, सितंबर के बाद जो है। आपको क्या लगता है कि यूएस दूसरा ये है कि क्या होगा? राहु केतु भी चेंज हो रहे हैं इस पीरियड में। अच्छा। सितंबर के महीने में राहु केतु भी पोजीशन अपनी चेंज कर रहे हैं, तो नेचुरली वो इंडिविजुअल हॉरोस्कोप के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या उसका इफेक्ट होगा। बट इन जनरल यू कैन से कि थोड़ी शांति होगी और थोड़ा सा उथल पुथल जो है वो कम होगा। समझे अंकल। और अभी तो यूएस इलेक्शंस आने वाले हैं नवंबर में। हाँ, वो तो उसके ऊपर यूएस के ऊपर डिपेंड करता है एक्चुअली। बट इंडिविजुअल की बात हम करें तो काफी थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, एक थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी। और इवन जो कहते हैं लोग कि बहुत अच्छी पोजीशन है कल, तो देखते हैं क्या होता है। सपोज टू बी द वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन जो कि 500 साल में आती है, तो लेट अस सी द रिजल्ट क्या होता है। 500 साल हमने पहले तो देखे नहीं कभी, बट डेफिनेटली इट शुड बी गुड एक्चुअली, क्योंकि इतनी अच्छी पोजीशन कभी होती नहीं है प्लैनेट्स की। और पर्टिकुलरली जो बच्चे पैदा होंगे इस टाइम में, उनके लिए तो बहुत ही मतलब एक विचित्र सी पोजीशन है जो कभी पॉसिबल हो नहीं सकती। One of the best position। और जैन साहब जिसका कल बर्थडे हो उसके लिए क्या? नहीं, बर्थडे आपका है, बर्थडे से नहीं, वही पूछना था, बर्थडे हो तो बर्थडे। हाँ, ये बर्थडे है कल, तो आप बर्थडे की आप खूब पूजा करिए और सबको यहाँ मिठाई खिलाइए सबको जो है तो उसका फायदा होगा। बट वी शुड डू सम पूजा टुमारो एक्चुअली अराउंड नून टाइम एक्चुअली। What about in क्या टाइमिंग का कोई उसमें पूजा के लिए? 12 से 1 बजे के बीच में। 12 से 1 बजे।
12 to 1 is the best time to do some पूजा पाठ, और particularly बर्थडे के लिए तो बहुत अच्छा टाइम है कि आप इसकी पूजा पाठ करेंगे कुछ, तो बहुत अच्छा होगा। मेरे ख्याल से साहब कोविड को भगाने के लिए पूरे हिंदुस्तान में एक अभियान चलना चाहिए इस पीरियड। हिंदुस्तान क्या करेगा? हिंदुस्तान में तो nobody is concerned actually, सब भूल गए कोविड को। हेलो, हाँ जी सर जैसे आपने बोला जो महादशा चलती है या कोई सी भी दशा चलती है उसमें 3-6-11 लॉर्ड की अगर चल रही है तो वो रिजल्ट्स हमेशा अनफेवरेबल होंगे। राइट। तो अगर थर्ड लॉर्ड है जो वो अगर लग्नेश का लगन लॉर्ड का फ्रेंड है तो पर स्टिल उसकी अनफेवरेबल थर्ड का है तो भले ही वो लगन लॉर्ड हो, उसकी दशा खराब ही होगी। तो फिर सर उसका फायदा क्या होगा? वो उसका फ्रेंड है, स्टिल हमें रिजल्ट्स तो फिर अनफेवरेबल ही मिल रहे हैं। देखिए जो 3, 6, 10, 11, 6, 8, 12 तो हम समझते ही हैं कि ये त्रिक हाउस है, but some people they consider third house also as a trick house because this is the tristai house for other kendras. So third house from that angle is not supposed to be a good house. It's just like a trick house. जैसे कि trick house हमारे first house के लिए 6, 8, 12 trick house है, तो ऐसे ही दूसरे केंद्रों के लिए third house is a trick house. तो इसको हम एक त्रिक हाउस की कैटेगरी में ही रखते हैं। तो लॉर्ड ऑफ त्रिक हाउस इज नेवर ए बेनिफिक प्लैनेट। सर तो जो 11th हाउस है दैट इज हाउस ऑफ गेन्स, तो फिर उसका भी अनफेवरेबल। दिस इज अगेन ए त्रिक हाउस फॉर अदर केंद्रास। 4th हाउस के लिए 8th पोजीशन हो गई, उसके लिए त्रिक हाउस हो गया। सर ऐसे तो सारे ही हाउस तो गेन्स कैसे मिलेंगे? जैसे 11th का कोई लॉर्ड की दशा अंतरदशा चल रही है तो फिर उसको गेन्स कब मिलेंगे? आपने गलत समझ रहे हैं। जैसे त्रिक हाउस हम कहते हैं कि त्रिक हाउस का मतलब क्या है कि दे गिव यू सम प्रॉब्लम्स एंड द हर्डल्स। एक्चुअली रिजल्ट मान लीजिए अच्छे मिल रहे हैं लेकिन बीच बीच में कुछ ना कुछ अड़चने आती हैं, तो वही रोल है त्रिक हाउस का। त्रिक हाउस का मतलब ये नहीं होता कि रिजल्ट एकदम से खराब हो जाएंगे सारे के सारे। Trick house means कि they will give you some problems in the hurdles actually, and smooth नहीं होगी life, but result may be very good actually। 11th house का lord है, gains तो होंगे लेकिन problem होगी क्योंकि 4th house से 8th house है, आपकी कुछ family life में problem हो जाएगी। Okay। उस point of view से देखिए आप इसको। Okay, thank you sir, got it। Good। हाँ। जो सोलर एक्लिप्स को हम इतना डरते हैं या कुछ अच्छा नहीं मानते हैं, उस टाइम के बर्थ को क्या कहेंगे? अगर उस बर्थ इज नॉट सपोज्ड टू बी गुड क्योंकि अब सोल हमारी सन हमारी आत्मा है, और जब सोलर एक्लिप्स के टाइम बर्थ होता है तो इट हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन आवर सोल व्हिच इज ऑफ ए परमानेंट टाइप ऑफ थिंग। तो ऐसे व्यक्तियों का सोल लेवल पर कुछ एडवर्स इफेक्ट आ जाता है तो नेचुरली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है उनकी लाइफ में थ्रू आउट। इसी कॉन्टेक्स्ट में अंकल पूर्णिमा के बर्थ का बताएंगे कुछ? अगर पूर्णिमा को बर्थ हो तो? पूर्णिमा को जो मून है उसको हमने पावरफुल माना तिथि के हिसाब से, बिकॉज मून हैज द फुल साइज, तो मून इज सपोज्ड टू बी पावरफुल ऑन दैट डे। दैट इज द ओनली सिग्निफिकेंस कि मून जो है उस दिन बहुत पावरफुल होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, दैट डे इज रियली गुड एक्चुअली, ऑस्पिशियस डे होता है पूर्णिमा का दिन जो है, because the moon is very powerful on that day। अमावस्या के दिन सबसे खराब होता है, बिल्कुल 0 साइज का होता है, तो अमावस्या के दिन मैलिफिक होता है, लेकिन पूर्णिमा के दिन तो मून इज बेनिफिक प्लैनेट। Understood। So mentally strong, the person will be mentally and emotionally strong। देखिए जितनी भी जो रिसर्च वगैरह होती हैं, जितने भी आप देखिए कि बड़े बड़े काम होते हैं पूर्णिमा के दिन ही होते हैं, कि जिनका माइंड ऑलरेडी स्ट्रांग है और पूर्णिमा के दिन वैसे भी ट्रांजिट में मून बहुत अच्छा है, तो पीपल कैन डू लॉट ऑफ गुड वर्क ऑन दैट डे। One more question। जी। So yesterday I saw your one video on profession। जी। तो उसमें you told about the astrology। तो उसमें फर्स्ट कंडीशन थी जुपिटर और मरकरी should be associated with 8th house। So my question, that is for knowledge in the occult subject, not yes, for general profession। Yeah, that for was astrology। if you want to learn astrology, then yes, there is a role of 8th house, because 8th house is the house of occult subject। Yeah, so sir, my question is
here जुपिटर एंड मरकरी दोनों का ही 8th हाउस से एसोसिएशन होना चाहिए? नहीं, दोनों में या से एक का, देखिए बोथ द दोनों में प्लैनेट्स से आर एक द का? प्लैनेट्स ऑफ नॉलेज। मरकरी Okay. को भी हम नॉलेज का प्लैनेट मानते हैं और जुपिटर को भी मानते हैं। Or association could be like Jupiter is aspecting 8th house and Mercury is sitting with Jupiter. Then it's good combination. दोनों में से एक का भी हो चलेगा, Okay. एक का भी होगा तो that shows that you can learn this subject, you can have this knowledge. So Okay. that was only for the purpose, if you want to learn astrology, then there is a role of 8th house, not for profession, any profession. Yeah. Okay. No question? Chaliye, thank you so much. So we meet tomorrow. Thank you, uncle. Okay, then thank you. Good night. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Okay, thank you. Thank you.